Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. So this is a video that is you can say थोड़ी सी अलग है बाकी टॉपिक से, यानी कि जो हम लिटरेचर और लिंग्विस्टिक्स अभी तक करते आ रहे हैं उससे थोड़ी सी डिफरेंट है. इट्स अबाउट द लैंग्वेज, that how we are using the language, and it's the part of my spoken course, so that's why I'm uploading the video of it. So today's lecture is about the daily expressions, like how you use some verbal expressions in your daily routine. आप normal conversation में daily routine में बात करते हुए कैसे कैसे words या expressions use कर सकते हैं, वो सब चीज़ें हम इसमें discuss करेंगे. सबसे पहले हम बात करते हैं social expression की, यानी कि अगर आप किसी से society में interact कर रहे हैं, किसी से आप social context में बात कर रहे हैं, तो फिर आप ये ऐसे expressions use कर सकते हैं. इसके बाद मेरी एक और वीडियो आएगी जिसके अंदर मैं कंप्लीट एक यू कैन से 30 सेंटेंसेस बताऊंगी, जिसके अंदर आपको वो सारे सोशल कन्वेंशंस या सोशल एक्सप्रेशंस मिल जाएंगे कि आप एक वर्ड की जगह कौन से बाकी फ्रेजेस यूज़ कर सकते हैं. सबसे पहले हम बात करते हैं हे हाउ आर यू. द अदर पर्सन विल से फाइन थैंक यू, फाइन थैंक्स. हेलो जेन, हाई पीटर. Like if you are greeting someone, then these are very simple expressions to call any person. And when you are leaving, then you can say okay, see you tomorrow, or see you soon, or see you the day after tomorrow, like this, or see you on Monday, and the next person will say bye, see you then. तो ये sentences आप use कर सकते हैं when you are meeting somebody, when you are greeting somebody, and when you are saying goodbye. Then we have good night. Good night means the other person will reply okay, sleep well, have a sound sleep, have a good sleep, have a good night, or have sweet dreams. These expressions can be used for the good night. Next we have good morning, and in good morning you can say good morning again, and then you can reply with have a nice day, have a good day, like this. The next will be hello, I am Elaine Paul, and the other person will reply that nice to meet you Elaine, and something like that. You can say up to you that how are you, and I'm fine, and what about your day, how's it going. I will give all the expressions in the very next video. And when you're celebrating something, for example, if you're celebrating you can say a success, victory, you can say a celebration, then you can say cheers while sharing something, while having the tea together, while having the drinks together, or having the juices together, or having a kind of party. So you can say cheers, like making others happy is meaning of cheers. The other phrase is excuse me. Now excuse me is a word that can be used in two connotations. The first one, you can use if somebody is asking you for excuse means sorry. Like अगर कोई आपसे जगह मांग रहा है, या अगर आपको किसी को आपकी कोई हेल्प चाहिए, या कोई आपसे लाइक कोई काम चाहिए, कोई हेल्प चाहिए, तो फिर वो आपसे कहेगा एक्सक्यूज़ मी, जगह चाहिए, या फिर एनीथिंग, एंड योर रिप्लाई विल बी येस, कैन आई हेल्प यू. So this is the reply that you will say to a person who will be saying excuse me to you. Next you have make yourself at home. Now keep this in mind, there are two phrases. The first one is at home. The other one is fish out of water. आप ये दो sentences और phrases use करके you can change your expression. If you are saying at home का मतलब है to feel comfortable, यानी कि एक जगह पर अपने आप को comfortable feel करना, एक जगह पर खुद को घर जैसा महसूस करना. That is the meaning of this idiom at home. यानी कि मैं अगर किसी को कहूँ कि आप इस चीज़ को अपना घर समझें, या आप यहाँ पे कंफर्टेबल हैं, तो आई विल से कि मेक योर सेल्फ एट होम, अपने आप को कंफर्टेबल रखिए. या मैं कहूँ कि लिव देयर एज यू आर एट योर होम, तो इसका मतलब ये है कि मैं किसी एक इंसान को कह रही हूँ कि आप इसको अपना घर समझिए, या बी कंफर्टेबल एट योर सेल्फ. अगर कोई प्रेजेंटेशन देने जा रहा है तो उसको मोटिवेट करने के लिए आई विल से मेक योर सेल्फ एट होम, कि सबसे पहले तो अपने आप को कंफर्टेबल करो, ईजी करो अपने आप को. So this will be the translation of that. And when I say fish out of water का मतलब है किसी uncomfortable situation में आना, यानी कि किसी प्रॉब्लम में आना जो कि आपको लग रहा है कि ये ठीक नहीं है, like you are not a part of this situation. So what can you do? You will say I am feeling a fish out of water, कि मैं अपने आप को बहुत अलग महसूस कर रहा हूँ, मुझे यहाँ पे कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा. तो ये दोनों सेंटेंसेज और फ्रेजेस का यूज़ करके आप अपने जो एक्सप्रेशन है उसको बेहतर बना सकते हैं. और क्या रिप्लाई होगा उसका? थैंक यू वेरी मच, दैट्स वेरी नाइस ऑफ यू. तो ये कुछ फ्रेजेस मैं फिर कह रही हूँ. इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो में आपको सारी डिटेल्स बताऊंगी कि किस तरीके से आप इनके अलावा डिफरेंट एक्सप्रेशंस यूज़ कर सकते हैं. अभी सिर्फ जनरल डिस्कशन कर लें, ठीक है. नेक्स्ट वी हैव थैंक यू वेरी मच. Now thank you very much is a very general expression, like whenever somebody is giving you something, कोई
कुछ भी दे रहा है, कोई अच्छा काम कर दिया, then you will simply be saying thank you. And the other person will be saying pleasure is all mine. You're welcome. It's very nice of you. This, okay? And when you are going somewhere or somebody have done something for you, or you are going to say thank you, you can also say bless you. May God bless you. The other person will say thanks or same to you, or same goes for you. So these are the social expressions that you can use in your daily routine. अब हम बात करते हैं मेकिंग कन्वर्जेशंस की, यानी कि आप किस तरीके से बात बढ़ा सकते हैं. अब पाकिस्तान में क्या होता है, बात कहाँ से कहाँ शुरू होती है, कहाँ से ख़त्म होती है. येस, हेलो, हाउ आर यू, आई एम फाइन, गुड, व्हाट अबाउट यू, आई एम ऑल्सो फाइन, एंड व्हाट आर यू डूइंग, आई एम स्टडिंग, दैट्स इट, बात खत्म. इससे आगे किसी के पास कोई जवाब नहीं होता. सो टू एक्सटेंड द कन्वर्जेशन, टू मेक द कन्वर्जेशन, यू हैव टू स्पीक ऑल दिस थिंग्स. व्हाट अ नाइस डे इट इज़ टुडे. यस, इट्स ब्यूटिफुल, इजंट इट. अब आप देखें कि काउंटर क्वेश्चन जो किया है ना, इजंट इट, इसका ये मतलब है कि अब कन्वर्जेशन बढ़ेगी. ठीक है, तो अगला बंदा भी है, वो कोई और बात शुरू कर देगा. नेक्स्ट वी हैव हाउ आर यू टुडे. आज तुम कैसे हो. फाइन, थैंक यू, मैं ठीक हूँ. हाउ अबाउट यू, तुम कैसे हो. डिड यू हैव अ नाइस वीकेंड. क्या तुम्हारा वीकेंड अच्छा गुजरा. येस, वी हैड अ ग्रेट टाइम. वी वेंट टू द बीच एंड डिड सम शॉपिंग. हमारा बहुत अच्छा वक्त गुजरा, हम बीच पर गए और हमने बहुत सी शॉपिंग की. तो आप देख सकते हैं किस तरीके से आप कन्वर्सेशन बढ़ा सकते हैं. सिर्फ हम क्या करते हैं कि हम छोटी छोटी बात का रिप्लाई कर देते हैं कि व्हाट अ नाइस डे इट इज़ टुडे, एंड द अदर पर्सन विल से येस. यहाँ से बात शुरू नहीं होती, आपको भी कोई बात आगे करनी पड़ती है कि इट इज़ ब्यूटीफुल, इजंट इट. हाउ डू यू लाइक लिविंग इन टेक्सास, और हाउ डू यू लाइक लिविंग इन लाहौर, हाउ डू यू लाइक लिविंग इन कराची. आई एम enjoying it. It was a kind of strange at first, but I'm getting used to it. It means कि पहले तो ये थोड़ा मुश्किल था, लेकिन अब मुझे आसानी हो रही है. So you can say, at first I was feeling like a fish out of water, but now I'm at home. तो ऐसे आप इस फ्रेज का यूज़ कर सकते हैं जो मैंने आपको बताया. Did you have a good flight? Yes, no problems. The plane was a little late, but it didn't matter. Now see how a person is continuing the conversations, how they are making talk longer. Did you watch the soccer game yesterday? क्या आपने कल क्रिकेट मैच देखा, सॉकर मैच देखा, फुटबॉल देखा. No, I missed it. What was the score by the way? ठीक है. What a beautiful coat you are wearing. अब आप किसी की भी तारीफ करेंगे तो आप उसको बताएंगे कि यार आपने कितनी अच्छी शर्ट पहनी है, आपने कितने अच्छे ट्राउजर्स पहने हैं, यू हैव अ गुड शूज़. तो आगे से आप क्या रिप्लाई करेंगे, थैंक यू, आई गॉट इट इन सैन फ्रांसिस्को लास्ट ईयर. मतलब बात ख़त्म नहीं करनी है एक फ्रेज में या एक सेंटेंस में, आपको बात बढ़ाने के लिए नेक्स्ट सेंटेंस बोलना है. अब हम बात करते हैं टाइम एक्सप्रेशंस की. मैं बार बार कह रही हूँ कि नेक्स्ट वीडियो में मैं डिटेल में सब चीज़ें बताऊँगी. अभी तो मैं आपको सिर्फ एक बेस बना रही हूँ कि आपको ये सब चीज़ों का पता होना चाहिए, और बाद में मैं आपको सारे एक्सप्रेशंस क्लियर कर दूँगी कि आप ये भी यूज़ कर सकते हैं. अब देखिए टाइम एक्सप्रेशंस में आप ऐसा कर सकते हैं, कैन यू से दीज डेट्स. अब ये सारी इसमें डेट्स लिखी हुई हैं, ठीक है. एक ब्रिटिश में लिखा हुआ है, एक नॉर्मल में लिखा हुआ है कि एक में मंथ पहले आता है और एक में डेट पहले आती है. सिंपल यू कैन से टुडे इज़ 13th August 2022, या टुडे इज़ 8th, August 13th 2022. ये दो तरह से यूज़ किए जाते हैं. सो जस्ट लीव इट. अब आप आ जाए प्राइसेस और शॉपिंग. ओके, आई एम सॉरी. अब आप देखें कि देर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशंस. वन इज़ द स्पोकन वन एंड अदर इज़ द रिटन वन. अब ये आपको थोड़ा सा इसमें देखना पड़ेगा. कहीं चीज़ें ऐसी होंगी या कहीं यू कैन से जगह ऐसी होंगी जहाँ पे आपको ये अमेरिकन इंग्लिश के अंदर सारे मिलेंगे, ये जितनी करेंसीज हैं, और कहीं पर आपको ब्रिटिश इंग्लिश में मिलेंगे. इफ़ आई टॉक अबाउट अ डॉलर, देन इन अमेरिकन इंग्लिश अ डॉलर इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस सिंबल, दिस वन. Now this dollar sign is used in American English, and this what I was saying, this indicates a dollar. And when it comes to the British English, they call it a pound. ये pound का साइन है, ये आपने याद रखना है, ठीक है. इसी तरीके से पाउंड को अगर आप लिखेंगे 50 पाउंड्स को, तो ये 50 पाउंड्स है, ठीक है. 1 pound 99 लाइक दिस आप यूँ लिखेंगे, एंड इट्स 16 pounds and 40. तो ये इस तरीके से आप ब्रिटिश इंग्लिश में इस चीज़ को करेंगे, पढ़ेंगे.
अब अगर मैं अमेरिकन इंग्लिश की बात करूँ तो डॉलर्स के अंदर सेंट्स होते हैं, तो आप उसको 50 से रिप्रेजेंट करते हैं। और $99 इस तरीके से $16.40 आप इसको, या 16.40 पढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से हम अमेरिका में या यूएस में हम इस तरीके से प्राइसेस को देखते हैं। ये पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आप कोई लाइक आप किसी मॉल वगैरह में जाते हैं, अक्सर प्राइसेस इन आपको मिलेंगी डॉलर्स या पाउंड्स की फॉर्म में, तो ये आपने जहन में रखना है। अब आगे हम बात करते हैं हाउ डू यू फील की। ठीक है, अब देखें ये डिफरेंट तरीके के एक्सप्रेशंस हैं कि अगर कोई आपसे पूछ रहा है हाउ डू यू फील राइट नाउ, तो आप डिफरेंट तरीके से इसमें बात कर सकते हैं। अब देखें, मैं बारी बारी आपको बताती हूँ। आई फील नर्वस, आई हैव अ टेस्ट टुडे, या आई फील नर्वस, आई हैव अ प्रेजेंटेशन टुडे। ठीक है, अब देखें ये वो है कि आप किसी को बता रहे हैं, क्योंकि आपसे पूछते हैं कि आपको कैसा लग रहा है, तो आप कहेंगे कि मुझे आज बहुत नर्वस लग रहा है, आज मेरा इंटरव्यू है, आज मेरी जॉब के लिए जाना है, वट एवर इट इज़। और नेक्स्ट पर्सन, या अगर आपसे कोई ऐसी बात करे तो आप क्या रिप्लाई करेंगे? गुड लक, डू योर बेस्ट। You are going to give a very motivational answer to the person, not you are saying कि okay I feel also nervous. No, nothing about that. अगर कोई आपको कह रहा है कि he is feeling nervous, then motivate them. नेक्स्ट सेंटेंस, आई डोंट फील वेरी वेल। अब ये आ गई है फीलिंग की बात, यानी कि आपको कैसा फील हो रहा है। इज देयर एनी काइंड ऑफ सिकनेस, इज देयर एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम विद योर हेल्थ? आई थिंक आई एम गेटिंग द फ्लू। ठीक है, अब आप ये रिप्लाई करेंगे, वाई डोंट यू गो होम एंड गो टू बेड, कि आप घर जाकर आराम क्यों नहीं करते? सो दिस इज द थिंग दैट यू कैन यूज वाइल यू आर स्पीकिंग और टॉकिंग टू समवन। अब आगे आ जाएं, अब कोई आपसे पूछ रहा है कि कल आपकी तबीयत खराब थी, अब आप कैसे हैं? तो यू विल से आई एम फीलिंग अ लॉट बेटर, थैंक्स, आई हैव अ लॉट मोर एनर्जी। और आगे से कोई क्या कहेगा? दैट्स गुड, आई एम ग्लैड टू हेयर इट। अब आप देखें कि ये किस तरीके से लाइन टू लाइन एक्सप्रेशन चेंज हो रहे हैं। अब अगर कोई आपसे वेकेशंस पे जाने की बात कर रहा है, तो आप क्या कहेंगे? आई एम रियली एक्साइटेड, आई एम गोइंग ऑन वेकेशन टू बैंकॉक टुमारो, कि कल मैं अपने वेकेशंस के लिए बैंकॉक जा रहा हूँ। और द अदर पर्सन विल बी सेइंग दैट्स वेरी ग्रेट, हैव अ वेरी गुड टाइम। So this is how the expression changes, and this is how you can make the conversation with the other person. I'm sick of this weather. It's so wet and miserable. अगर कोई पूछे कि what's the weather in your city, then you can say I'm sick of this weather. It's so wet and miserable. और अगर वो weather अच्छा है तो आप कहेंगे yes, the weather is very beautiful here. ठीक है, तो अगला बंदा क्या रिप्लाई करेगा? If you will be saying the weather is wet and miserable, I know we really need some sun. यानी कि हवा में ह्यूमिडिटी है, हवा में बहुत ज़्यादा नमी है। और अगला आप क्या रिप्लाई करेंगे? कि बाकी हमें थोड़ी सी हरारत की, सूरज की या फिर रोशनी की ज़रूरत है। आई एम रियली टायर्ड, आई डिडंट स्लीप वेरी वेल लास्ट नाइट। अगर कोई आपसे पूछ रहा है हाउ डू यू फील, तो आप ये भी कह सकते हैं कि आई एम रियली टायर्ड, आई डिडंट स्लीप वेरी वेल लास्ट नाइट। और फिर आप आगे से क्या कहेंगे? दैट हैपन्स टू मी समटाइम्स, आई जस्ट रीड इन बेड, कि मेरे साथ भी कभी कभी ऐसा होता है कि मुझे नींद नहीं आती, तो मैं क्या करती हूँ? आई यूज टू स्टार्ट रीडिंग इन द बेड, कि मैं अपने आप को किसी और एक्टिविटीज़ में लगा लेती हूँ। आई यूज टू रीड इन बेड, आई यूज टू, यू कैन से वॉच अ मूवी इन माई बेड, आई यूज टू वट एवर यू आर डूइंग। ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन एक्सप्लेन दैट हाउ डू यू फील। आई एम काइंड ऑफ वरिड, माई ग्रैंड फादर इज गोइंग इन टू द हॉस्पिटल फॉर टेस्ट, कि मैं बहुत परेशान हूँ कि आज मेरे बेटे का, मेरे भाई का, मेरे फादर का, मेरे ग्रैंड फादर का, उनका हॉस्पिटल में कोई टेस्ट है, देयर आर सम रिपोर्ट्स दैट आर कमिंग, या माई मदर इज़ नॉट फीलिंग वेल। Then other person or you will be saying I'm sorry to hear that, but I'm sure he will be all right. अब देखें, ये I'm sorry to hear का तब यूज़ होता है जब आप कोई बैड न्यूज़ सुनते हैं। कभी भी कोई आपको कहे कि अल्लाह न करे, खुदा न खास्ता किसी की कोई फोदगी हो जाती है, कोई बीमार पड़ जाता है, किसी का अस्तगफिरुल्लाह एक्सीडेंट हो जाता है, then you have to say I'm very sorry to hear about that. I really apologize for that. तो आप इस तरीके से एक्सप्रेशन बोल सकते हैं। I feel really depressed right now. Nothing is going right in my life. ये तब बोलते हैं जब you are having a kind of failure or having a kind of settlement in your life, कि आपकी लाइफ बिल्कुल एक सीधी पेज पर चल रही है, तब आप ये अल्फाज इस्तेमाल करते हैं कि मुझे बहुत डिप्रेशन हो रहा है, मुझे नहीं समझ आ रहा मेरी ज़िंदगी में चल क्या रहा है। तो आप क्या जवाब देंगे? cheer up, things can't be that bad, कि चीज़ें इतनी बुरी नहीं होती, अपने आप को मोटिवेट करो। तो ये सारे एक्सप्रेशन हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं, डेट हाउ डू यू फील। अब आ जाए डायरेक्शंस के ऊपर। Directions, just a minute, let me okay, so from directions to onwards I will inshallah describe in the very next video, and after that video I will be giving more expressions or the final 30 sentences that how you can use those sentences to make a conversation. So this is up till now, this is completed, and inshallah I will be completing this lecture in the next video.
So after this you can go to that video and watch that. Thank you so much and take care and be like busy yourself in practice. So take care. Allah Hafiz.